चलिए हाँ जी, चलो शुरू करो। मैडम वेट कीजिएगा, सारे लोग ज्वाइन कर लें। ज्वाइन बैक इरम, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, डॉक्टर इरम, वी ज्वाइन बैक, ठीक है। सॉरी, एक्चुअली फ्री वर्जन है हमारे पास, 40 मिनट का चेक होता है, तो ये काइंडली थोड़ा सा चेक दे दीजिए। ठीक है, बस ठीक है। लास्ट पार्ट ऑफ माय थीसिस इज रिजल्ट्स इंटरव्यू कॉजेज ऑफ टेररिज्म। वही 10 इंडिकेटर्स आप देख रहे हैं, मैंने लोगों से पूछे, लेकिन इसमें जो लास्ट 3 इंडिकेटर्स है लोग उनको टॉप पे ले गए और जो मिड वाले 4 कॉजेज थे उनको नीचे लेके आए। तो here we are watching expert opinion with reference to causes of terrorism जो है वो थोड़ा सा फर्क है। If I want to conclude my thesis, मेरा जो outcome of the thesis है that 2 of the government, successive government, one of Musharraf and another of President Zardari, their policies revolves around 3D counterterrorism strategy. One was deterrence, banning militant groups and conducting military operations. Number 2, dialogue, striking peace deal with the militants to pacify them. Third, development, improving socio-economic conditions of the masses as well of the areas under. ये वो सारे ग्रुप्स हैं या पॉलिसीज हैं जो कि दोनों हुकूमतों ने ऑप्ट की थी, जो कि मैंने पहले इसकी स्लाइड आप लोगों को बता दी थी। 2013 के लिए आई सजेस्टेड अ पॉलिसी जो कि मैंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कैपिटल को भी भिजवाई थी। सम ऑफ दी जो पॉलिसीज थी विच इज पार्ट ऑफ द डिस्कशन, अभी नहीं हो सकता, तो वो फेडरल गवर्नमेंट ने और कमीशन ने भी उसके ऊपर अमल किया था। यहाँ पे वो मैंने उनको स्ट्रेटजीज काउंटर टेररिज्म अपनी थीसिस में सजेस्ट की थी। कंक्लूजन, we can conclude that 2 successive government of after determining the causes of terrorism in Pakistan on the indicator from 1 to 10, we are saying that still there are hurdles Pakistan is facing to counter terrorism. This is war, Pakistan participation in the war on terror, separatism, ethnic strife, poverty, foreign involvement, lack of law enforcement, ineffective judicial system, illiteracy, other minor but unignorable causes. If we want to provide solution to the problem, पहले तो ये that we must to fight terrorism and extremism at the society level, formal and informal government and non-governmental bodies should be involved. Second is economic development and to eradicate poverty. The third is role of the police, क्योंकि मुशर्रफ दौर में पुलिस को जो रोल दिया गया था उनकी कैपेसिटी वो नहीं थी। The next is the law enforcement agencies. Here we are also talking about the establishment as a whole. Another is NAPTA should be activated, उसके ऊपर मैंने काम किया था और इसमें बहुत ज्यादा पोस्टिंग होती है, पीपल आर कमिंग एंड गोइंग, देयर इज नो सच परमानेंट फैकल्टी, तो अगर वो भी फैकल्टी हो वो टू काउंटर टेररिज्म इदारा है। नेशनल एक्शन प्लान ऑफ 2015, इसके ऊपर 0% काम है। अगेन आई हैव सजेस्टेड रोट टू द प्राइम मिनिस्टर, मैंने उनको सजेस्ट किया हुआ कि प्लीज इसको आप लोग इंट्रोड्यूस करें, एंड दे आर अगेन सेइंग कि हम अपनी कैबिनेट में लेके आएंगे। अर्जेंट नीड टू पे सोशल अटेंशन टू राइजिंग एक्सट्रीमिज्म एंड सेक्टरिज्म इन पाकिस्तान, करप्शन फ्री पाकिस्तान। Various issues in this research include study of addressing the issue of terrorism, which means judicial reforms. Next is need for understanding religious harmony, rule of law and authority, that no should be above law. Women in Pakistan should be empowered. Government needs to make efforts improving relation with the neighboring country like Afghanistan, Iran and Pakistan. क्योंकि हम कहते हैं कि पाकिस्तान में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है, तो इससे बेहतर हो सकते हैं। मेन स्ट्रीमिंग ऑफ फाटा, क्योंकि अब वो KPK में मर्ज भी हो गया, लेकिन स्टिल क्योंकि मैं वहां से बिलोंग करती हूँ, लेकिन अभी भी वहां पे FC रूल चल रहे, प्रैक्टिकली देयर इज जिरका सिस्टम ओवर देयर, तो वो जो है। थैंक यू सो मच मैडम सर, मेरी प्रेजेंटेशन जो है। अच्छा डॉक्टर इरम एंड डॉक्टर खालिद साहब, internal examination now Viva is open for question answer session, and the other audience, they can also join us during this session. They may ask question, and Ms. Shabnam Gul is ready to answer your question. Please, Dr. Iram and Dr. Khalid Manzoor. So Dr. Iram will start or I should start? It's up to you. Madam Iram, Dr. Iram, चले ladies first बात कर लें। Thank you, Dr. साहब।
थैंक यू डॉक्टर साहब, आप हमेशा ही बहुत ज्यादा कर्टसी शो करते हैं, थैंक यू सो मच। प्लेजर जी। अच्छा जी, शबनम, पहली बात तो ये कि मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट पहले कर दूं, आप भी इंशाल्लाह बल्कि बन चुकी है डॉक्टर, सिर्फ ये तो एक फॉर्मेलिटी है, आपने बहुत बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जाहिर है कि एज एक्सटर्नल एग्जामिनर कुछ हमारी भी कुछ शौक होते हैं कि कुछ सवाल जो है जरूर पूछ लिए जाएं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क दैट प्लीज शबनम, कैन यू डिफाइन टेररिज्म इन योर ओन वर्ड्स? मुझे किसी की डेफिनेशन नहीं बतानी है, नाउ आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू। जी मैम, मैंने जो पहले बताया था कि मैंने एमफिल का थीसिस भी टेररिज्म पे किया था और ये भी, तो मैंने जो अपने थीसिस में डेफिनेशन यूज की है वो मैंने अपनी यूज की है, किसी की आफ्टर रीडिंग मेनी लिटरेचर. Like I define the concept of terrorism, that terrorism is an act of violence by individual, group and state against other individual, group and states to achieve some specific and non-specific objectives. पाकिस्तान पर कैसे अप्लाई कर की आपने ये डेफिनेशन? पाकिस्तान के ऊपर मैम ऐसे है that on the morning of 9/11 when United States of America was attacked by the terrorists and there were 19 people who were non-Arab or non-Asian involved in the attacks, they declared war against terrorism and President Musharraf at that time was हेलो, आवाज नहीं आ रही। शबनम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मिस शबनम, काइंडली जरा चेक कीजिएगा, माइक ठीक है आपका? मिस शबनम बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो एडमन, आप उन्हें बताएं कि आवाज नहीं आ रही। जी सर, मैंने अभी उनको बताया, एक्चुअली मुझे भी उनकी आवाज नहीं आ रही। मिस शबनम, आपको आवाज आ रही है? मैंने आपकी आवाज नहीं जा रही। मुझे सर आपकी आवाज आ रही है, तो मेरा ख्याल है कि सबको मेरी आवाज आ रही होगी। रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। बस असल में ये टेक्नोलॉजी के जो इश्यूज हैं ये तो हमारे साथ सर वो आई थिंक लॉग आउट हो गई हैं, शायद मोबाइल की उनकी बैटरी का कोई इशू हो या लैपटॉप अगर वो यूज कर रहे हैं। नहीं, डिपार्टमेंट में वैसे भी ना इश्यू है थोड़ा सा, हमारे डिपार्टमेंट में इश्यू है थोड़ा सा सिग्नल्स का, एकदम से सिग्नल्स ड्रॉप हो जाते हैं। अभी दोबारा मुझे रिक्वेस्ट आई है तो वो करती हैं बात अभी। चलें, आप रिकनेक्ट करें। इसीलिए हमने क्लासेस शुरू की थी ऑनलाइन, लेकिन अभी वो आइडिया ड्रॉप कर दिया है क्योंकि बेशतर इलाके जो रूरल एरियाज हैं खास तौर पे, वहाँ पे बच्चों के पास है नहीं नेट की फैसिलिटीज। हेलो डॉक्टर साहब। जी नहीं, डॉक्टर कमर, आपकी आवाज आ रही है? अब आवाज आई। अस्सलामुअलैकुम जी मैम, मैं यहाँ से वो नहीं कनेक्ट हो रहा है। जी मैम। हाँ जी चलिए, वो मैम इसके बाद मेरा ख्याल हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ आपको आ रही है, आई थिंक सो। जी मैम। जी मैडम, आ रही है आवाज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा शबनम, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मैम। जी मैम आ रही है। अच्छा बच्चे, ये बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका मेन कंक्लूजन क्या है, आपने जो प्रेजेंटेशन बताया है, लेकिन सिंपली अगर मैं पूछूं क्या इन ओनली इन 2 लाइंस दैट व्हाट इज योर थीसिस, तो क्या कहोगे आप? जी मैंने अपने थीसिस में ये कंक्लूड किया, ये फीडबैक आ रही है। हाँ दोबारा बोलो शबनम, तुम्हारी फीडबैक आ रही है। जी सामने। ओ
फर्स्ट मिस शबनम चेक कीजिएगा आपके माइक आपने यूज करी है हेडफोन वगैरह, तो वो प्लीज उसको दोबारा लगाएं या फिर उसको उतार दें। हाँ वो बहुत ज्यादा अब ठीक हो गया। जी जी सर, जी मैम कैरी ऑन। जी मैम आपका क्वेश्चन था। फीडबैक क्यों हो रही है? जी मैं सिंपल आपसे पूछ रही हूँ कि आप सिर्फ within 2 lines what is your thesis? What is my thesis? My thesis is about the counter-terrorism strategies of the two successive governments to eradicate terrorism in Pakistan. In this regard, the two governments from 2001-2013 adopted different measures, which explained it according to the 3D: deterrence, defense, and dialogue. And according to my perception, these two successive governments were successful to counter terrorism to such extent, but there were some hurdles which still need to be resolved. अच्छा मुझे ये बताओ कि आपके इस पूरे काम में ऐसा क्या एक सिंगल पॉइंट है जिसकी बेस पर आज मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँ? Talking to the doctor, ma'am, it's difficult to say something. और मेरे टीचर भी हैं तो उनके सामने तो मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं कहूँ। नहीं बच्चे कोई एक पॉइंट बहुत प्लस पॉइंट ये है कि मेरे टीचर में मेरे अब तक पाकिस्तान में जो काम हुआ है, only 5 causes of terrorism are identified up till now. मैंने 10 causes of terrorism पाकिस्तान में identify किए। Second is मैम कि there is no extensive work on General Musharraf and Zardari eras. मैंने दोनों का काम इकट्ठा करके I have made a comparative study and to eradicate or counter terrorism in Pakistan. Third is ma'am that for the coming successive government, I have proposed a strategy जो कि मैंने नेटा को भी भेजी थी और गवर्नमेंट्स को फेडरल को भी भेजी है कि अगर इसको फॉलो किया जाए तो टेररिज्म खत्म नहीं हो सकता, लेकिन इट कैन बी मिनिमाइज। मैंने इन 3 एरियाज पे काम किया है। चलें जी, मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू डॉक्टर खालिद साहब। हाँ जी, मैं मेरा थोड़ा सा आई विल हैव सम फिलोसॉफी। जी सर, शुड आई स्टार्ट? Yes, definitely. I have some philosophical question for you because you have done a lot of work, so you must know these things. I have found that you have somehow did not link Ziaul Haq's involvement in war as a root cause, because once we bring jinne out of the bottle and we trained Taliban or Mujahideen, at that time we used to call them Mujahideen, and we showed them a path for struggle, and then I have not found anything. You have linked this thing with the Zia era or Zia's decision to get involved Pakistan in this kind of war. So why you did not link with these things? It's a basic root cause of terrorism in Pakistan. सर मैं स्टार्ट, आप मेरे टीचर भी हैं तो मैं बोलना चाहती हूँ। जी सर, if you have gone through my thesis, there are 7 chapters and 5 main chapters, sub chapters के अलावा। One of the chapter is on the history of terrorism in Pakistan, in which I have mentioned categorically. I started from 1947. Second is from the Ziaul Haq era 1979, and the third is 79 Iranian Revolution. सर अगर आपने मेरा इंट्रोडक्टरी पार्ट सुना होगा तो मैंने अपना जो हेलो वॉइस फिर चली गई, ईरान और उसकी इन्वॉल्वमेंट से सर शुरू किया था। अब आ रही है। And with the thesis, if you are watching this सर, मेरे जो thesis है इसमें I have made some distinction between the Taliban, the extremist Mujahideen। सर मैंने उसके ऊपर बाकायदा मेंशन किया है that now the concept has now changed from Afghan Taliban to the Pakistani Taliban, and then good Taliban and bad Taliban, and now the concept of Saraiki Taliban। तो सर ये मैंने issues जो है उसके अंदर वो किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। Because I want to see it as a root cause, क्योंकि आपने 10 causes बताई हैं जो मतलब मुख्तलिफ तरह की, इसमें एक हिस्टोरिकल कॉज भी होनी चाहिए थी, क्योंकि जब आप एक चीज शुरू करते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट मतलब जिस भी पैराए में जो भी ऑब्जेक्टिव था उस वक्त, तो वो जो एक कॉज थी उसने आगे फर्दर ये सारी चीजें बढ़ाई हैं। और अगर हम उस
जी सर। क्योंकि आई वांट टू सी दिस थिंग इन योर मेन सॉर्ट ऑफ अगर आप कॉजेस। मेरे थीसिस में देखें सर, जो 10 रूट कॉजेज ऑफ टेररिज्म है, वन ऑफ द कॉज ऑफ टेररिज्म इज फॉरेन इन्वॉल्वमेंट. फॉरेन इन्वॉल्वमेंट स्टैंड्स फॉर अमेरिका, अफगानिस्तान, ईरान, एनी नेबरिंग कंट्री. अगेन आप मेरा सवाल नहीं समझिए, मैं आपको समझा नहीं सका। जी सर, वो तो फॉरेन इन्वॉल्वमेंट तो होती रहती है मुल्कों में, वो कोई इशू नहीं है। पॉइंट ये पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट इन दैट वॉर, एंड पाकिस्तान वाज सपोर्टिंग एंड फॉलोइंग द डायरेक्शन ऑफ अमेरिका फॉर अमेरिकन इंटरेस्ट। वो जो एक रूट कॉज है, वो एक ऐसी है जिससे हम उस डगर पे चल पड़े, जिससे वापस आना हमारे लिए फिर मुश्किल बल्कि नामुमकिन होगी। Sir, if you have gone through my interview data में मैंने बाकायदा एक सवाल पब्लिक से पूछा है, Are you satisfied with the policies of the Pakistani government, Musharraf and Zardari, that they are going out for to join war against terrorism, to join the neighboring countries' policies, to devise the policies? Are you satisfied with the policies of the government, Pakistan involvement in foreign affairs of the other country? सर आप अगर इसको पढ़े, सेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड पे बाकायदा मैंने सर चार्ट में आपको वो मेंशन किया। शबनम, वो आई एग्री, वो आपने लोगों की बात की है उसमें। मैंने आप स्टार्ट किया था कि फिलोसॉफिकली आपको इसे सम अप करना चाहिए था कि ये जो एक ऐसा एक्ट हुआ जिसके बाद हम फिर उससे डिविएट रहे, हम उस कॉगमायर में फंसते ही चले गए। और सर, उस वो एक जगह सही है, लेकिन सर एज ए स्टूडेंट, मैं आप ही की स्टूडेंट हूँ और ये कुछ आप ही नहीं मुझे पढ़ाया हुआ, अगर आपको याद हो। Sir, as a student, मेरा focus is on 9/11 and then the policies of the two government. Historically, I'm not going too much in the detail of that event. I have just mentioned the event of 1979, Iranian Revolution, 1979, Afghanistan, Soviet invention within Afghanistan, और उसको फिर मैंने इंटरव्यू में पूछा भी, वो हिस्ट्री भी मैंने दोबारा पूछ ली कि वो क्या हुकूमत ने हमारे से ही किया था या नहीं किया था। सर, तो मेरा फोकस प्रेजेंट दो गवर्नमेंट के पास है, सक्सेसिव गवर्नमेंट। I have gone through your thesis. मैं उस चीज को नहीं कह रहा कि आपने वो नहीं किया, मैं तो वो कह रहा हूँ जो मेरे ख्याल में शायद ज्यादा जरूरी था और होना चाहिए था। क्योंकि देखें, कुछ चीजें हैं थीसिस में जो आप, क्योंकि आपने इंटरव्यूज किए हैं, क्वालिटेटिव है आपका, क्वांटिटेटिव भी है, और वो जो मासेस की बातें होती हैं वो फिलॉसफी की नहीं होती। मैं जो आपको चीज एस्टैब्लिश करना चाह रहा हूँ, जो मासेस कहते हैं जरूरी नहीं होता वो ठीक हो, लाइकिंग डिसलाइकिंग हो सकती हैं। एक मतलब बेशुमार लोग ईसा खेलवी को पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं जी वो ठीक नहीं है। ये मासेस के साथ नहीं आप चल सकते। व्हेन यू आर डूइंग अ फिलोसॉफिकल थिंग और रिसर्च ओरिएंटेड थिंग, उसमें देन यू हैव टू एस्टैब्लिश दैट थिंग बाय अप्लाइंग हिस्टोरिकल थिंग्स एंड फाइंड एम्पिरिकल थिंग, फिर आप उसकी कंक्लूजन करते हैं। सर, जो तो आई वुड जी सर इफ यू लिसन मी, मैंने इंटरव्यू किए थे, 10 काजेस मैंने पूछे, मैंने एनी अदर एक्सपर्ट से पूछा, 50 लोग जो मैंने इंटरव्यू किए थे उन्होंने सिर्फ एक काज ऑफ टेररिज्म बताई। उन 50 लोगों में से सर आपने लिस्ट पढ़ी है कि स्टेटमेंट से लेके नीचे, सर उनमें से उन्होंने सिर्फ एक ही रीजन बताई, एक्सटेंडेड। 10 काजेस मैंने बताई, उन्होंने तकफीरी जो था ग्रुप वो उसमें ऐड किया। उसके अलावा सर किसी ने कोई मजीद एडिशन जो है उसमें नहीं की। तो सर जो मुझे काजेस आ थे, मैंने 10 की लोगों ने उसके अंदर एक जो काज ऑफ टेररिज्म है वो ऐड किया है। लेकिन सर अगर आप सजेस्ट करते हैं जो मैं थीसिस जमा कराऊंगी तो मैं उसमें बेशक मैं सजेस्ट करता हूँ, आपका वर्क बहुत अच्छा है। आप ये ना समझे कि मैं आपके एमी क्रिटिसाइज कर रहा हूँ या मैं एमी को पॉइंट पकड़ के उसको, ये आई वांट दैट योर थीसिस शुड बी इन अ परफेक्ट फॉर्म, क्योंकि बहुत अच्छा काम है। मैंने आपको शुरू में उसकी अप्रिशिएट नहीं किया, बट आई हैव गॉन थ्रू योर थीसिस, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, मेहनत हुई है। लेकिन हमेशा, क्योंकि ये पीएचडी का एक वाइवा है और पीएचडी एक डिग्री, बहुत अहम डिग्री, बड़ी डिग्री होती है, तो इसमें बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो मतलब मिसिंग लिंक्स होते हैं या इस तरह का मामला हो जाता है। और फिर ये जो होता है ना स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, मैं आपको एक और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। वेस्ट में स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू को बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि आप उन्हें पाबंद कर देते हैं भी ये 10 कॉजेज हैं, टेल मी विच इज द बेस्ट वन, विच इज द वर्स्ट वन, ऐसे ही है ना। इसीलिए वेस्ट में ओपन एंडेड इंटरव्यू को पसंद किया जाता है कि मे बी वो 10 के अलावा भी कोई कॉज उनके जहन में हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल्स हैं या आम आदमी।
तो हम उन्हें पाबंद कर देते हैं उन 10 कॉजेज में। मैं उन 10 कॉजेज के अलावा 2 कॉजेज मेरे जहन में आई थी। एक तो ये आई थी कि हमने उसको उस तरह लिंक नहीं किया कि जो हम अमेरिका के साथ इन्वॉल्व हो गए और सारा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारा इंटेलिजेंस है उसके लिए यूज होता रहा, ठीक है। और एक और चीज हमारी मिसिंग है, एक जो पोरस बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, दिस इज आल्सो वेरी बिग कॉज, क्योंकि इस पे भी ये दुनिया का अजीब सा मुल्क है पाकिस्तान, सारे नेबरिंग कंट्री में, जिसमें कोई बॉर्डर पे चेक ही कोई नहीं। ये भी एक बहुत बड़ी कॉज है कि हमारे जो लोग हैं, जो टेररिस्ट हैं या दूसरे लोग भी हैं, वो बगैर किसी खाते के आ जाते हैं और चले भी जाते हैं और उन्हें कोई रोक टोक नहीं है। अभी वो ठीक है फेंसिंग कर रहे हैं, इट्स वेरी लेट, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी कॉज थी कि हमारा, क्योंकि उनसे कल्चरल बहुत स्ट्रांग रिलेशन है अफगानिस्तान के साथ, और ये आप अलूफ रह नहीं सकते अगर वहां कोई प्रॉब्लम हो और पाकिस्तान में ना हो। तो इस पोरस बॉर्डर इज आल्सो बिग। मैं इसलिए कह रहा हूँ जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होते हैं उसमें ये एक प्रॉब्लम आती है हमेशा, क्योंकि ऐसी चीज होती है जो कोई एक बंदा बता सकता है कि वो हो, ये भी एक रीजन हो सकता था जी, ये है। तो इसलिए मैं जस्ट ऐड कर रहा हूँ, मैं उसको ये नहीं कह रहा कि लाजमी, क्योंकि आपका जाहिर बड़ा डिटेल वर्क है। सर वो मेरा आपके नजर में होगा कि फिर वो रिसर्चर अगर हम देखें कि हम वक्त को देखते हुए और पैसे को देखते हुए कि लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल होता है, तो सर हम पहले से क्वेश्चन वो पूछने में बंद कर देते हैं ताकि वो टाइम और वो हमारा यही तो मसला है। इसीलिए तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता। उसमें एक ओपन एंडेड भी क्वेश्चन हमें शुरू में रखने चाहिए। इसके अलावा भी अगर कोई आपकी बात है तो आप बताएं, ताकि आउट ऑफ बॉक्स भी तो कुछ चीजें मिल जाती है ना जो बाद में बाहर। अच्छा, एक और चीज जो मैं देखना चाह रहा था आपकी, कि आपने नेक्टा के बारे में बताया है। एक तो आप पेज 203 में आपने नेक्टा के लिखा है कि 203 में वो बनी, वो नहीं, वो गलत लिखा गया। मैं 200 शायद 9 में वो नेक्टा का उसका हुआ था, तो जरा चेक कर लीजिएगा। अच्छा, दूसरा जो आपने नेशनल एक्शन प्लान बताया है, उसमें डू यू थिंक इस पे अमल दरामद नहीं हुआ, एंड इफ इट इज नॉट हैपेंड व्हाई इट इज सो, इसमें किसका कसूर है? सर इसमें जो प्रीवियस 2 गवर्नमेंट को भी मैंने स्टडी किया, और क्योंकि मैंने अपने क्वेश्चनेयर में PMLN जो है उसका भी पोर्शन डाला था फॉर द एनालिसिस, क्योंकि मैं सजेस्ट तब करती तो मुझे लोगों की राय पता चलती कि उनकी वीकनेसेस क्या है। सर जो 2015 उसका था 15 का जो प्लान था नेशनल एक्शन प्लान, इसमें फ्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल फ्रेमवर्क जो था इट वाज रिवाइज्ड, but there were some basic points which were not practical. Like sir वो ये कहते हैं कि इंटेलिजेंसिया जो है वो अपना रोल अदा करे, but along with this keeping in view the role of the police it is taking aside. जो हमने इंटरव्यू में सर देखा, the 2002 का जो ऑर्डर, people even don't know about the role of police कि ये है क्या, then they are talking about the incapacity of the institution. सर इसमें इनकैपेसिटी को कैसे दूर करेंगे? हमारे यहाँ सर हम देखते हैं कि दहशतगर्दों को आम हॉस्पिटल में लोगों के साथ रखा जाता है। इनकी कैपेसिटी किसने बढ़ानी? सर द गवर्नमेंट हैज टू रेज द कैपेसिटी। So talking in terms of agenda and policy formulation and making it practical, sir, these are two different things. तो सर मुझे ये लगा कि पुलिस रिफॉर्म्स में एंड देन इंटेलिजेंसिया में सर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है कोई डेवलपमेंट नहीं, इट इज देयर। मुझे तो सर अभी तक कोई इस तरह का इदारा, ओनली देयर इज वन होप व्हिच आई सी इज नेक्टा, लेकिन सर आप उसको भी देख रहे हैं कि इट इज मोर प्रायोरिटाइज, उसको कर दिया गया। देयर आर मोर पीपल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इंस्टेड ऑफ जॉइनिंग देम परमानेंटली। तो सर you want to say कि नेक्टा has not been institutionalized in a way, क्योंकि उसको प्रॉपर प्रोफेशनली इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया गया, बजाय कि इधर उधर से बंदे पकड़ के उसमें डाल दिए। सर इट इज एन इंस्टीट्यूशन, बट इफ आई एम नॉट इनकरेक्ट, ये अच्छा नहीं लगता, बट इट इज मोर देन वर्किंग ऑन लीस्ट बेसिस। वहां पे देयर आर 59 पीपल टॉप पे who are working there on, इसीलिए that's why I have used this word that NECTA has not been institutionalized. इंस्टीट्यूशनलाइज का मतलब होता है कि प्रॉपर तरीके से सिलेक्शन हो, लोग रेगुलर तरीके से आए, वो किसी को आंसरेबल हो, उनका कोई स्टे टाइम हो, कोई उनकी मॉनिटरिंग हो। ये एक हौच पौच है, इधर उधर से लोग पकड़ के नेक्टा में फिट इन कर देते हैं। There are 3 type of people working in NECTA. One is military, another is intelligentsia, and third is common people like me. तो सर आप देख लें कि उस अच्छा people are coming for 2 or 3 years and then going back. तो जो वो जाते हैं कुछ सीख के, that's why I'm saying this thing. जाया जाता है।
तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि वो इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हो सकी नेक्टा, वो एक बस एक स्पॉट है जहाँ पे मुख्तलिफ एजेंसियों से मुख्तलिफ अदारों से लोग आ जाते हैं, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं उस तरह का होता, उनकी कोई एक्सपोजर उस तरह का नहीं होता, तो उस वजह से इसे उस तरह प्रोफेशनली काम नहीं कर पाया नेक्टा। मेरा ये ख्याल है। जी सर, यू आर राइट। और दूसरा एक चीज है कि आपने नेक्टा में जो एक बहुत अहम चीज थी या होनी चाहिए थी, वो थी मदरसा रिफॉर्म्स। मदरसा रिफॉर्म्स को विद ऑल एफर्ट्स अभी तक हम स्ट्रीमलाइन नहीं कर सके, और मदरसा अभी तक उन्हीं के ज़ेरे साया हैं और उसी तरह ट्रेनिंग चल रही है, उसे मेन स्ट्रीम में नहीं लाया जा सका मदरसा को। जो डू यू थिंक मदरसा जो मदरसाज हैं that was the nursery for this terrorism or anything? जी सर, यू आर वेरी मच राइट, क्योंकि मदरसा का जो जिक्र आपने पहले किया था, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बैकग्राउंड ऑफ 1979, और फिर जब वो वहां से विड्रॉ किया सोवियत यूनियन ने एंड द रिमेनिंग, इसीलिए मैंने वो यूज किया था। जी सर, तो वो वही लोग थे जो मदरसा में या फ्री एजुकेशन में पढ़े हुए थे, दे वर हैविंग स्कॉलरशिप फ्रॉम स्टेट, फ्री एजुकेशन थी उनकी। इससे you can derive another thing, that government is not playing its role, government is not providing proper education to everyone, so that's why madrasa are coming up, and they are playing very important role, particularly for those whose parents are unable to send their children to proper schools. सर, क्योंकि मैं फाटा से बिलोंग करती हूँ, तो मैं बहुत सारे इस तरह के लोगों से भी मिलना मेरा हुआ है, इंटरव्यू भी मैंने किए। तो सर, एक तो मुझे ये चीज़ पता चली कि MMA की जब गवर्नमेंट बनी थी, तो उन्होंने पीस डील जो किए थे, उन्हीं को कहा कि आप हुकूमत के साथ एक एग्रीमेंट ये भी हुआ था दैट दे आर गोइंग टू सेटल पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज। एक तरफ आप उनको कह रहे हैं कि दहशतगर्द है, ऑन द अदर हैंड यू आर आस्किंग देम एज अ डील that you are not going to do terrorist activities, आप हमारे साथ हाथ मिला ले, हम आपको तालीम का काम दे रहे हैं, आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी हमारे लिए बनाए। सर, हाउ पॉसिबल? एक साइड क्वेश्चन है, why Prime Minister Imran Khan gave financial support to Samiul Haq Madrasa? So can you justify it? एक वन ऑफ दी रीजन इज, जो शायद इंटरव्यू में लोगों ने वो तकफीरी वो किया है कि being a Muslim, you consider that the other person, the other sect of my religion is kafir or infidel. तो सर, ये वही हम कहते हैं that भी, जो सर आप बात कर रहे थे कि ईरान या दूसरे मुल्कों के साथ पाकिस्तान का भी अगर हम उनका क्लेम करते हैं, तो हमारी हुकूमत भी हाथ रोके रखे। यू आर वेरी मच राइट, बिकॉज वी आर एडमिटिंग दिस कि पाकिस्तान की जो जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है, इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। एज लियाकत अली खान स्टेटेड, पाकिस्तान इज हार्ट ऑफ एशिया। इट इज हार्ट ऑफ एशिया, बट इट डजंट मीन कि अपना हार्ट जो है बार बार किसी और के सामने रखे। तो सर, यू आर वेरी मच राइट इस पर्सपेक्टिव में कि जो क्या मैं कह रही थी सर, मैं पूछा था इमरान खान ने जो समीउल हक को उसके मदरसे को बहुत बड़ी फंडिंग दी है, तो उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट, you know very well that is a whole we are Sunni Muslim and then we pick a Jafri। तो सर, आपको ये डिबेट हमारे यहाँ पता है that we as a Muslim believe in some particular dogma। हेलो जी आ रही है आवाज? हाँ जी सर, आ रही है। चलें, सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं अब दूसरा आखिरी सवाल मेरी तरफ से, you use purposive sampling, okay? So when you were selecting the respondent, so what were the things in your mind to select them? And because then the surveyor has the choice to select anybody from the sample, from the population. So what were the things in your mind to select the person for the interview? Sir, मेरे knowledge, because that is very important responsibility on the surveyor or interviewer. What kind of people he should include in the sample? जी sir, because me as a researcher, because I initiated the research, I initiated the topic, it was in my mind that who are the people who know a little bit about these areas. So as I was first source of my thesis as a researcher, जिन लोगों को मैं जानती थी, मेरे ज़हन में आया कि ये भी मैं कुछ जानता है या ये इस इलाके से बिलोंग करता है, तो देयर वर इमीडिएट फ्रेंड्स एंड फैमिली कोलीग्स एंड देन इंस्टीट्यूशन एंड देन माय फैमिली बैकग्राउंड। इस तरीके से मैंने लोगों को जो है वो जाके
इंटरव्यू किया या उनको बताया कि आप जो है वो उसके ऊपर मुझे जो है रिस्पॉन्ड करें। लेकिन सर जो मेरा सेकंड चॉइस थी ऑफ दी क्या कहते हैं ऑफ द इंटरव्यूज, तो उसमें मैंने थिंक टैंक से मदद ली एंड थ्रू आउट पाकिस्तान जो मुझे लोग बेहतर लगे और मुझे लगा कि दीज आर द पीपल टॉप पाकिस्तानी जिनसे लोग जो है इंटरव्यू लेते हैं। तो सर आई अनकॉर्पोरेटेड दोज पीपल और मैंने वहां पे उस बायसनेस को इधर जो है वो खत्म करने की कोशिश की। बट सर एज फार एज माय सर्वे इज कंसर्न इट वाज ओपन फॉर एवरीवन। ऐसे नहीं था कि सिर्फ मेरी फैमिली का जाने वाला सर या दूसरे इंस्टीट्यूशन का वो जानता था, इट वाज ओपन। तो जो पहले आए सर उन्होंने एक्चुअली सॉरी टू ओपन नहीं इंटरप्ट, हमारे पास 9 मिनट्स हैं अभी, फिर बस दोबारा। आई एम जस्ट गोइंग टू फिनिश। ओपन में ये असल मसला ये होता है कि ओपन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज मोर ऑन द सर्वेयर, क्योंकि उसने जिसको भी सिलेक्ट करना है ही शुड कीप इन हिज माइंड कि व्हाट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स एंड एबिलिटीज ही और शी शुड हैव। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जब आप पर्पसिव सैम्पलिंग यूज करते हैं कि मैं कौन से रिस्पोंडेंट को सिलेक्ट करूं और उसकी क्या वजूहात हैं कि मैं उसको सिलेक्ट करूं, कि वो सूटेबल है, अप्रोचेबल है, उसको नॉलेज उतना है। क्योंकि आई हैव वेरी इंटरेस्टिंगली सीन इन यू देयर आर सम हाउसवाइफ्स यू हैव इंटरव्यूड देम आल्सो। सो इसलिए उस पर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है व्हेन यू यूज पर्पसिव सैम्पलिंग मेथड, क्योंकि उसमें फिर आपने सेलेक्ट करना होता है बंदे को, उसमें उसकी कोई खास वजूहात और नहीं होती। तो ये मैं बस थोड़ा सा जानना चाह रहा था। चले, बहरहाल आपका अच्छा है बहुत, मैंने पढ़ा, बड़ा इंटरेस्टिंग था और बड़े मेहनत की हुई है आपने, और मुझे खुशी हुई कि हमारी एक ओल्ड स्टूडेंट ने एक अच्छा काम किया। खालिद साहब आप प्लीज कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, मैं कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन हूँ डॉक्टर ताहिरा मुगल, तो गो हेड, कोई मसला नहीं, हम रीज्वाइन कर लेंगे सर। नहीं कोई नहीं, अब वो हो गया क्रक, सब हो गई बातचीत, हमने तो एक इनपुट ही I'm लेना very होता thankful है। to you and मैडम कि आपने हमारे साथ इतना टाइम निकाला और हमें ये दिया। नहीं, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर, हमें खुशी है कि हम ऐसी सिचुएशन में वी आर हेल्पिंग यू, और एक्चुअली वी आर हेल्पिंग द स्टूडेंट्स जो बेचारा 5-7 साल मेहनत करके और अब एक सिचुएशन में आगे फंस जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड हेल्प हर आउट, और इसमें आई एम ग्लैड कि हमें मौका मिला है और दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो। सो मैं मिस शबनम को एक तरह मुबारक भी देता हूँ और डॉक्टर कमर को भी मुबारक देता हूँ, आप कंट्रोलर एग्जामिनेशन को भी कि उन्होंने स्पेशल अरेंजमेंट की है, और आपकी वाइस चांसलर को भी, यू ऑल पीपल हैव मेड स्पेशल अरेंजमेंट फॉर दिस वाइवा। सो मेरी तरफ से मुबारक शबनम को भी और बाकी कलीग्स को भी। थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आई एम बैक अगेन। जी thank you very much, you have authorized us to call and give this title to Shabnam Gul. Now she is Dr. Shabnam. जी she is Dr. Shabnam Gul। आप अपना फॉर्मेलिटीज कर लीजिए को डॉक्यूमेंटेशन की, तो फिर नोटिफाई जब हो जाए फिर से कहिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, our director research Dr. Farah Khan is also with us. She personally joined this viva। जी over to Dr. Farah Khan, she is director research। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे बड़ी खुशी हुई कि शबनम का वाइवा जो है वो हो गया, एंड अब नेक्टा को कोई सही बंदा भी मिल जाएगा आई थिंक, जिसका बाकी टेररिज्म पे काम है। बाकी तो सारे एम ही आए होंगे ना। नहीं वो आप सही कह रहे हैं, बट से बदनाम होने वाली बात है, मशहूर होने वाले हो तो उसी तरीके से भी हो सकता है, लेकिन नहीं मेरा ख्याल था, मैं जो बात कर रहा था कि इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने की जरूरत है, तो नेक्टा में प्रोफेशनल लोगों को आना चाहिए, जो मेरा टेक है इस पे। हमने पकड़ के उधर से बंदे पूरे किए हुए हैं और प्रोफेशनल बंदा है कोई नहीं जिसकी इस पे स्टडी हो या कोई रिसर्च हो या जिसका काम हो इस पे, तो इसलिए नेक्टा इस तरह इफेक्टिवली कभी काम नहीं कर सका अभी तक। इधर तो आप गवाही दे देना कि मैंने मैट्रिक पास नहीं हूँ, मैंने मास्टर एमफिल आपके पास से किया है। नहीं हमने तो शुरू से ये बात कह दी है, इसमें तो ऐसी बात नहीं। तो वो जो लोग हैं वहाँ पे, ये हमारे अदारों को इस बारे में सीरियसली सोचना चाहिए कि ये मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स नहीं होते कोई अदारा बनाना, इसमें आपको प्रोफेशनल्स ही लाने चाहिए और उन्हीं को इन्वॉल्व करना चाहिए। ये जो मुख्तलिफ महकमों से लोग आके उसमें बैठ गए हैं, उन्होंने दे विल डू नथिंग, और इसीलिए नेक्टा अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ बहुत सारी चीजों में। अभी तक वो मदरसा रिफॉर्म्स के बारे में कुछ नहीं कर पाए, अभी तक हमारे जो मोबाइल हैं
मैं पिछले 1.5-2 साल पहले मीटिंग में गया था नेक्टेक की, एक उन्होंने बुलाए थे कि जी इंटेलेक्चुअल बुलाने हैं पूरे पाकिस्तान में। तो मैंने उन्हें यही कहा था कि हमारी पॉलिसी बहुत अजीब सी है नेक्टेक कि अभी तक हमें पता नहीं कि अफगानिस्तान को डील कैसे करना है, और वो अफगानिस्तान हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे टेक्नोक्रेट्स जो हैं वो किसी जिंदगी के शोबे में पावर नहीं है, बस ऐसे ही है। अगर हमारे मौजूदा उसी शोबे के माहिर जो हैं वो उसमें आ जाए अपने डिपार्टमेंट में पावर में और डिसीजन मेकिंग में, तो पाकिस्तान कहाँ पर होगा। ये वही हिसाब है जिस तरह ब्यूरोक्रेट समझते हैं कि हम तालीम में भी माहिर हैं, हेल्थ में भी माहिर हैं, पब्लिक डीलिंग में भी माहिर हैं। तो ये बड़ी खामख्याली होती है, हरफन मौला नहीं होता क्योंकि आजकल का दौर पूरे दुनिया में जो है ये स्पेशलाइजेशन का दौर है। जहां भी कोई बंदा हो वो स्पेशलाइज्ड होगा तो काम, जिस तरह प्लेटो भी कहता है स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, स्पेसिफिक बंदा स्पेसिफिक काम के लिए होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे तो ब्यूरोक्रेट्स मिसाल है, हरफन मौला है, वो हर काम करते हैं, वो हेल्थ में भी मास्टर हैं, एजुकेशन में भी, इसीलिए यूनिवर्सिटियों का हाल देख लें क्या हो रहा है। तो ये चीजें हैं जो मैटर ऑफ कंसर्न है फॉर एवरी। आपने बड़ी हेल्प की हमारी बच्ची को डॉक्टर बनने में, और ये यादगार चीज होती है सारी जिंदगी की। तो आपका हम शुक्रगुजार हैं, और लाहौर कॉलेज वुमेन्स यूनिवर्सिटी है, हमारी सारी अथॉरिटीज आपके साथ बैठी हैं। चलें, ये तो टर्मिनल डिग्री है ना पीआईडी की, इससे पहले जो डिग्री है वो हमने की, इसलिए हमने इसकी राह हमवार की हुई है कि उधर तक पहुंचेगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलें जी मैडम कमर, आप अपना जो भी साइन वगैरह कराने होंगे वो मेरे घर भिजवा दीजिए। जी जी, मैं आई विल साइन, नो वरी। जी जी। Dr. Tahira Mughal, Controller of Examination, she has personally joined online. So हम आपको इसकी जो attendance है, everything will be sent to your office. और आप दोनों, I am personally thankful to Dr. Khalid Manzoor Bhatt and Dr. Khalid from Punjab University, Dr. Saab from DC University. Thank you very much, and accept my heartfelt thank you because of your player ji, we are all family and we should support each other. Otherwise I was scared कि पता नहीं क्या होगा. This is first time that we are going to have मैं बहुत बड़ा इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि we all are like a family और we should support each other. तो इसलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये हमारा फर्ज था. So nice of you ji, and good luck to all. Congratulations. wants to talk to you. जी सर, मैं सबसे पहले जिन लोगों ने बाद में भी ज्वाइन किया है, मैं सबको सलाम कहना चाहती हूँ. सेकेंड ये कि मैं अपने वाइस चांसलर को आई वांट टू से थैंक्स टू हर कि ड्यू टू द कोरोना जो पेंडेमिक सिचुएशन है, बट शी परमिटेड अस फॉर वाइवा कि हम ये कंडक्ट करें. एंड देन आई एम थैंकफुल टू द रिसर्च डायरेक्टर डॉक्टर फराह खान, दैट शी इज आल्सो पार्ट ऑफ द प्रोसेस. And I am also very thankful to the controller examinations, Dr. Tahira Mughal. She is always helpful. She is always there for me. जब भी जरूरत हुई, जब भी मुझे मुश्किल हुई, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमेशा जो है वो मुश्किल से हमें निकाल देती हैं. इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी लोग हैं या जो कंप्यूटर पे हमें तो सबका शुक्रिया. थैंक यू सो मच. और अपने टीचर्स का और एक्सटर्नल का थैंक यू सो मच. ओके जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू. अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला हम लोगों ने ऑनलाइन वाइवा कराया है, इसकी इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी. एंड आई एम थैंकफुल टू मिस्टर अवैस जिन्होंने ये सारा हमारा मॉनिटर किया. एंड कांग्रेचुलेशन टू मिस कमर, आपकी आई थिंक सो पहली पीएचडी है. बहुत मुबारक. And Shabnam Gul, of course, you deserve for now Dr. Shabnam Gul. Thank you, ji. Thank you so much. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you, Awais. Welcome. Okay. Allah Hafiz.